Yeah, so today my topic is the religions and tradition will never save your life. तो आज का विषय ये है कि परंपराएं और धर्म हमें कभी भी नहीं बचा सकता। Religions, धर्म, traditions. और परंपराएं, Then what is the tradition? परंपराएं होती क्या है? What is the religion? धर्म क्या होता है? Christian is not a religion. मसीहत कोई धर्म नहीं है। Christian is not a tradition. मसीहत कोई परंपरा भी नहीं है। What is the tradition? I will tell you the definition. तो पास्टर बताना चाहती कि आखिर परंपराएं होती क्या है? The word tradition is the transmission of customs and belief from generation to generation. परंपराओं का अर्थ होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोगों की सोच होती है उसके अनुसार लोग कुछ करने लग जाते हैं, उन्हें परंपराएं बोला जाता है। So tradition and is the transmission, custom, belief, generation to तो generation. परंपराएं किसी चीज जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती रहती है लोगों की सोच के अनुसार। What kind of? किस तरह की? I will give you the example. जैसे एक उदाहरण के तौर पे In the Hindu culture, जैसे कि आप देखें हिंदू समाज में newly married, जैसे किसी की नई नई शादी होती है, they need to respect over their clothes, their face. घूंघट रखना होता है, There is the tradition. ये उनकी परंपरा है। Then the first wedding, the next day, they the bowl that you're bringing, and the person need to cook fast, very sweeting and distributing. और अगले दिन सुबह के समय जो नई नई बहू होती है उसे कुछ मीठा बनाना होता है, सबको खिलाना होता है। There is the tradition, ये उनकी परंपरा है generation to जो generation, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही आ रही है। and they say that you need to follow it. और वो कहते हैं अगर आपकी शादी हो तो आपको ऐसा करना ही होगा। But they are, covering their face, but their heart are not doing that. उनका सर तो पूरा कवर होता है लेकिन उनका दिल इसको गवाह नहीं करता। It's so respect and honor. उनको लगता है घूंघट करने से हम सामने वाले की इज्जत करते हैं। So this is the tradition. I was staying in Rajasthan 4 years. पास्टर कह रहे हैं मैं 4 साल राजस्थान में रही हूँ। All the gaon village I used to go. अलग-अलग गांव में पास्टर जाती थी। We never see the woman face. वहाँ पे औरतों की शक्लें नहीं दिखती। Every woman covering and they used to go हर out. किसी औरत की शक्ल ढकी हुई है। And we used to have a service. और पास्टर की सर्विस होती थी। And every woman was covering their face and clapping song and जितनी worshiping. औरतें आती सबके ही मुंह ढके होते थे घूंघट से और सब तालियां बजा रही होती थी। Then when we are prayer, healing, deliverance, लेकिन जब प्रार्थना होती थी और हीलिंग और डिलीवरेंस छुटकारे होते थे every student go out. तो सब लिखती थी और They will सबकी throw here and there. सबकी चुनियां गिर जाती थी। And then they don't know what they're doing, but devil is the one who क्योंकि walks. शैतान उनके तो वो आत्मा जो है वो मैनिफेस्ट होती थी। So that time I can see their face. तब पास्टर कहते चलो इस बार शक्ल तो दिखी। I can see the real face come ये out. असली शक्लें दिखती थी। Outside, covering nicely, but inside is the devil. मुंह तो ढका हुआ है लेकिन अंदर शैतान है। No respect, कोई इज्जत नहीं, no obedience, कोई बात मानना नहीं, no listening. कोई But this is the tradition they obey. लेकिन एक परंपरा है जो वो कर रहे हैं। They need to do it. उन्हें करना ही पड़ता है। Not in their heart. उनके दिल में नहीं होता But है। this is the tradition they following. लेकिन वो परंपरा है जो उन्हें करनी ही पड़ती है। Generation to generation. पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है ये। God is not like that. परमेश्वर ऐसा नहीं है। And then also, our tradition. What is our tradition? हमारी परंपरा क्या है? There is so many family. There is a tradition. अलग-अलग परिवार होते हैं तो परंपराएं भी होती है। Following, rule and regulations. अलग-अलग तरह के नियम और कानूनों का पालन कर रहे हैं। Those kind of following will never save your life. वो तरह के जब हम नियमों को पालन करते हैं उसकी वजह से हमारा जीवन नहीं And बचता। our traditions. और हमारी परंपरा You have a new building. अगर आपकी नई नई बिल्डिंग है You put a very what is that? I saw the skeleton hand putting in the outside of the house in the wall. तो पास्टर कह रहे हैं कि जब नई नई इमारत बनती है तो कोई हड्डी या कोई काले रंग की शक्ल लगा के उस पर मुखौटा लगा के घर के आगे टांग देता है। I saw many houses they put it outside. तो बहुत सारे घरों में आप देखेंगे अभी भी लगा होता है। That is the tradition. ये उनकी परंपरा है। For what? किस लिए? I asked somebody, for what is your putting? पास्टर ने कहा ये काले रंग की शक्ल क्यों लगा रखी है? They say demons will not come. वो कहते हैं शैतान अंदर नहीं आएगा ना इसलिए। But they are putting out demons. लेकिन शैतान की शक्ल तो बाहर लगा रखी है। Their face like or something like that, and they're hanging. उन्होंने ऐसी खराब शक्ल लगा के बाहर लगा रखी है। So they say उनको देख के डर लगता है शैतान नहीं आता. So that is the tradition. ये उनकी परंपरा है। They following generation to जो generation. पीढ़ियों से पीढ़ी चलती जा रही है। That is their belief. ये उनके विश्वास है। That will never save you. Put outside those things that will never save your life. लेकिन
परेशान है, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। You said that you're protecting from demons. आप कहते हैं कि अरे वो उसको लगाने से शैतान But डरता demon है, is working in your लेकिन family. शैतान तो अंदर बैठा है, That will not save. इससे नहीं बचेंगे। That skeleton head will never save you. वो हड्डियों Not protect the demons, not stop coming to your वो house. हड्डियों का ढांचा या वो मुखौटा लगाने से शैतान का आना रुकेगा नहीं, But that is their belief. लेकिन उनका विश्वास है They follow it generation to जो generation. पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही आ रहा That है। is the tradition, ये उनकी परंपरा है, culture. ये उनकी संस्कृति है, Belief. उनका विश्वास है। And then also another thing. और एक और चीज, I saw many people, what is that? Nimbu and chili. कई लोग नींबू और मिर्ची भी दुकानों पे, घरों They पे, hung in the dukan, they hung in the doorpost. गाड़ियों में भी लगाते हैं लोग। Everywhere. Then I asked, what is this? पास्ता ने ये क्यों लगाते हो तुम? They say demons, evil spirit, witchcraft, black magic will not follow. वो कहते हैं बुरी नजर नहीं लगेगी, काला जादू कोई करेगा ना तुम्हारी दुकान पे, यहाँ नहीं लगेगा। That is their belief. ये उनका How विश्वास है। can chili will save your life? एक हरी मिर्च आपको कैसे बचा सकती How can nimbu will save your है? life? नींबू आपको कैसे बचाएगा? They are blindly believe. वो सिर्फ अंधों की तरह विश्वास करते हैं। That thing will never save your life. ये चीजें आपके जीवन में Still you are getting all these things. पर फिर भी करते हैं और करवाते हैं घर वालों Still से, you have problem. और परेशानियां फिर भी रहती You हैं। are not saved. अभी भी नहीं बचे Your हैं, family are not saved. आपको परिवार नहीं बचा है। Okay, by putting all these things, your family are saved. आपको लगता है हरी मिर्ची लगाने से आपको परिवार बचता है? I'm asking you. आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, Saved? कितने लोग कहते हैं हाँ बचता है? Then you're putting so many muti in your house, all kinds of muti. आपके घर में हमने अलग अलग तरीके की मूर्तियां भी लगाई होती हैं, You thought that this muti will save और you. हमें लगता है ये मूर्तियां बचा देंगी। Ram, Krishna, Lakshmi, Kala, what is that? Kali, and then what is Shiv? Or kya? God. So you put in and you thought that this God will protect you. तो अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां लगाने से हमें लगता है कि ये देवी देवता हमें बचा लेंगे। That is a tradition following from our forefather. ये वो परंपरा और संस्कृति है जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही आ रही है और आज भी चल रही है। And their birth. You see, those putting your idol in your house, you are saved, आपको लगता है उन देवी देवताओं की मूर्तियां लगाने से आप बच जाते हैं, you are healed, आप चंगे हो जाते you हैं, are blessed? आप आशीषित होते हैं? No. नहीं होते। Another tradition. एक और, So many traditions, but I'm just telling the few. बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कुछ पास्टर बताना चाहती हूँ। Other tradition, when somebody, your father, mother, family died, अगर परिवार में किसी भी जन की मृत्यु होती है, मम्मी पापा भाई किसी की मृत्यु हो जाती है, women cannot come near. तो औरतें उस मृत शरीर के पास नहीं आ सकती। There is a tradition following. ये एक परंपरा है जो वो फॉलो कर रहे हैं। And then also after the death, some few days you are feeding food. और उसके बाद इंसान के मरने के बाद खाना बना के दिया जाता है पंडित को। Then you say that the person who died is spirit, they are peace. और वो कहते हैं कि पंडित को खाना खिलाएंगे तो वो खाना मरे हुए व्यक्ति तक There पहुंचेगा। is a belief death and alive nothing to do. बाइबल बताती है कि मरे और जीवित का कोई नाता नहीं है। Once the person died, they left and wherever God prepared a place. The person who did believe, they will go to the hell, the underlock, and the person who believed, they go to the paradise. बाइबल में साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो भी इंसान मरता है उस समय अगर उसने परमेश्वर में विश्वास किया होता है तो वो परमेश्वर के स्थान पे जाता है, अगर नहीं किया होता है तो पाताल में जाता है, नरक में। So that is how God putting, as you die, your spirit go where the place God has given. तो आपके मरने के बाद जो आपकी आत्मा है आपके जीवन के अनुसार वो वहां पहुंच जाती है। And then, but later on, when Jesus Christ comes, everyone will rise again for last judgment. और ये है कि उसके बाद जब यीशु मसीह दोबारा वापस आएंगे तो हर किसी का न्याय होगा और उसके बाद स्वर्ग और नरक मिलेगा। Now, till now, nobody go to hell. They are putting the Hindu people who did believe in Christ, they're putting it under law. They call it, there is a one place, pit or tomb तो somewhere. बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि अर्धलोक एक जगह होती है जहां पर जो भी इंसान परमेश्वर विश्वास नहीं करता मरने के बाद उसकी आत्मा बाहर रहती है और जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे और न्याय होगा उसके बाद ही वो नरक में जाएंगे। And then now the people believe if you die now, you go straight to the paradise, the resting place. और कई लोग ये विश्वास करते हैं कि जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं वो मर जाते हैं तो वो अभी स्वर्ग नहीं जाते लेकिन वो पैराडाइज एक जगह है वहां पर जाते हैं। And God and dwell in there. Now you also not go to heaven. तो हमें ये है कि हम सबको स्वर्ग जाना है। But we also know that when you die, you are not yet reaching heaven. You are in paradise. अगर आप मर भी जाते हैं तो अभी आप स्वर्ग नहीं जाते हैं लेकिन आप पैराडाइज में जाते हैं। So God is for the last judgment that He is preparing for each one of us. तो यीशु मसीह ने अभी भी न्याय का दिन रखा है और उस दिन न्याय के बाद ही स्वर्ग और नरक मिलेगा। But our tradition,
पर हमारी परंपरा क्या When है? you die, लोग you सोचते call हैं the कि spirit अगर मर जाएंगे तो मरने के उसकी आत्मा को पूजा पाठ से बुला लेते हैं and you pray और उसके लिए प्रार्थना करते and you हैं say the spirit is in your house. और लोग कहते हैं अरे वो जो मरे हुए व्यक्ति की ना आत्मा घर में घूम रही है। Sometimes people are really doing that and they become pagal. और कई बार ऐसे सच में लोगों को दिखता है और वो सोचते तो पागल हो जाते हैं And those spirits, Satan, form and they really dwell in their और life. उस इंसान की शक्ल लेके शैतान घर में घूमता है और लोग उसके बारे में सोचते हैं। That is not your father, your mother who died. That is not. Satan is the one who pretend as your father, as your mother and dwell and then putting you in your house and you are left, troubled. तो मरा हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो आपके घर में आता है लेकिन शैतान उसकी शक्ल लेके आपके घर में घूमता है। Those things will never save your life. वो चीजें कभी आपके जीवन को नहीं बचाएंगी। So tradition is that following generation to generation. परंपरा वो है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। This thing you follow, it will never save your life. ये चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इससे आपका जीवन नहीं And बचेगा। then your tradition is that you're binding these things. और एक और परंपरा क्या है कि लोग अपने हाथ में कलावा बांधते हैं। You go to Pandit, you go to Mandir. पंडित भी बांधता है, घर वाले भी This बांधते is हैं। thread ये धागा है made by wood, made by cotton. जो एक कॉटन से बनाया गया है। This will never save your life. इसको बांधने से कभी सुरक्षा नहीं But मिलती। this is a tradition. लेकिन लोगों की परंपरा है ये। They bind it. वो अपने हाथ में बांधते हैं And so, the place that you got it, they will pray. और जहाँ पे हमें बांधेंगे वो बांधते हैं, इसमें प्रार्थना भी करते हैं। Or you believe that this will work. आपको लगता है कि कलावा बांधने से आपको सुरक्षा मिलेगी And you think that this will save your life. ये आपके जीवन को बचाएगा। So you're binding these things. तो अगर आप ये चीजें बांधते हैं Are you saved? क्या आप बचते हैं इन चीजों से? People say, why you are binding these things? लोगों से पूछते हैं कि क्यों कलावा बांधते हो? Satan not to attack. वो लोग कहते हैं शैतान अटैक नहीं करेगा, Kala jadoo not to attack. काला जादू नहीं होगा, Sickness हमारे not to पास attack. बीमारी नहीं लगेगी And problem will not और come. परेशानी नहीं आएगी। But still you have a lot of problem. लेकिन चारों चीजें होती हैं। You carry and coming to this ये place. पहन के भी लोग आते हैं चर्च में। So this thing will never save your life. ये चीजें आपके जीवन को नहीं This बचाएगी। is not God. ये परमेश्वर नहीं है। And all the generation to generation following, that is the tradition. It will लेकिन never save पीढ़ी your दर life. पीढ़ी लोग इसको चलाते रहते हैं, इससे हमारा जीवन नहीं And बचता। some people use a tabi. कई लोग ताबीज पहनते हैं So they think that they put tabi and they will be healed, they will deliver. और उनको लगता है कि जब पंडित के बाद पंडित ताबीज देता है उसको पहन के हम चंगे हो जाएंगे। How many people have till now? If you have, please raise your hand. Have be honest. कितने लोगों ने अभी भी कलावा बांधा हुआ है अपने ये हाथों आपका पर? साथ में अभी? So you think that this will save you? Are you saved? आपको लगता है इसे पहनने से आप बच जाएंगे? And you put taba and then also they use no, the enemy will not take, witchcraft will not come, black magic will not come. Are you surely saved? या आपको लगता है कि ताबीज पहनने से आप पर काला जादू नहीं होगा, तंत्र मंत्र नहीं होगा? But still you are suffering. लेकिन उसके बांधने के बाद भी लोग परेशान रहते Still हैं। you are suffering with kala jadoo, sickness, disease. फिर भी काला जादू आप पर होता है, तंत्र You मंत्र are होते हैं, carrying. बीमार होते हैं। But these things are not protecting you. ये चीजें पहनने के बावजूद आप सुरक्षित नहीं है। These things are not saving your ये life. चीजें आपके जीवन को नहीं बचाती। You are carrying your burden, you put in your house, anything you do, but never save your तो life. पूजा पाठ करके आप कलावा बांधने ताबीज पहन लेते हैं, घर में कुछ चीजें लगा देते हैं। Or sometimes people come and do ritual. कई बार लोग रीति रिवाज करते हैं। So all these तो traditions ये सारी परंपराएं will never save your life. कभी भी आपके जीवन को नहीं बचाएंगी, It will never save your life. कभी भी आपके जीवन को नहीं If बचाएंगी। these things save you, अगर ये चीजें आपको बचाती then you should be saved. तो आप बच जाते ना। But still you have trouble. पर क्यों परेशानियां आज भी हैं? And then yesterday, what is that 13th, the Lori? जैसे कल 13 जनवरी थी और लोगों ने लोहड़ी मनाई। People doing Lori. लोगों ने लोहड़ी मनाई। They throw the, corn. They throw जो the. पंजाबियों का फेस्टिवल है कि लकड़ी जला के उसके अंदर डालते, फुलिया डालते So हैं। they are doing that for saving their life. वो करते हैं ताकि उनके जीवन बच जाए। They not doing that for peace, for joy, for healing, शांति, आनंद और चंगाई के लिए करते for protection. हैं, सुरक्षा के लिए करते हैं। They are saved. क्या वो उससे बचते हैं? Better to give me, I will eat all those. So पास्टर they will never save. कह रहे फुलिया आग में डालने से बेटर मुझे दे दो, मैं खा लूंगी। How can the corn will save your life? वो मूंगफली और वो फुलिया को कैसे बचाएंगी? All these things are blindly people are doing. लेकिन लोग ये अंधों की तरह करते हैं, क्यों? क्योंकि पहले के लोग करते थे तो आज भी कर रहे हैं, Those आगे भी things कर will रहे हैं। never save your life. ये चीजें हमें कभी नहीं बचाती हैं। See, you are Hindu before. जैसे पहले हम सब हिंदू All परिवार से the आए हैं। culture, tradition, ritual, you are following. पहले हम बहुत सारी परंपरा और रीति रिवाजों का पालन करते थे। Are you really saved? क्या उससे हम बचे थे? Your family is saved? परिवार बचा था? You are not saved. नहीं बचे थे, You are not delivered. नहीं छुटकारा। You are looking for running here and there for solution. लेकिन इधर उधर फिर भी भागते थे कि कहीं से हल मिल जाए।
You're looking for mandir to mandir. अलग अलग मंदिरों में जाते थे, And you're looking to doctors, not so many doctors and so many things. अलग अलग डॉक्टरों के पास जाते थे। I saw one video. बस गई मैंने एक वीडियो देखी, That is Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ की। The one man was giving a testimony. एक आदमी गवाही दे रहा था। What is that? Mommy was saying. So what is that? What? They have so many money they spend, but they cannot heal. उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्चा लेकिन जगाई नहीं मिली। But they come to Jesus, फिर वो यीशु के पास आए, and without medicine, बिना दवाई के they are healed. वो ठीक हो गए। And one pandit also, Preeti was sending me the video. One pandit was sharing. तो एक पंडित बता रहा था Christian लोग सब लोग को पागल बनाता है. कि जो मसीह लोग होते हैं, क्रिश्चियन लोग होते हैं, दूसरे लोगों को पागल बनाते हैं। So he was telling to the Hindu people, don't believe Christian. तो हिंदू लोग को कहते हैं, अरे क्रिश्चियन पे विश्वास मत किया करो। They come to church and they praying in paracetamol. They giving and the person is healed. वो कह रहे हैं कि लोगों को चर्च में लाते हैं, पैरासिटामोल देते हैं और ठीक कर देते हैं। And then also they giving so many things. So there is no issue. Paracetamol ना संगाई देते हैं, ये हम लोग को बेवकूफ बनाता है. So the one pandit was giving and preaching. तो एक पंडित ऐसा बोल रहा था, So we giving your paracetamol to you to heal your. आप इस तरह मेरे पास आने कभी आपको पैरासिटामोल दिया आज तक? So we give you medicine and you just pray and you eat and you are healed. क्या आपको दवाई देते हैं, प्रार्थना करते खा लेते ठीक हो So जाते हैं? church में paracetamol distribute करते हैं. कहाँ पैरासिटामोल के पत्ते बांट रहे हैं हम? How we give money? The pandit said we give money and you पंडित are. लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन लोगों को पैसा देके धर्म बदला जाता है। हम नहीं देते, आप देना पड़ेगा. Tithe offering, दान. So outside of this house they don't know what you are doing. तो इस घर के बाहर लोगों को पता नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन लोग बोलते हैं। And but they never come to church. People don't know, so they believe that what the pandit लोग said. चर्च में तो आते नहीं है, जो पंडित बोलते हैं उसे विश्वास कर लेते हैं। They are blindly. वो अंधों की तरह काम कर रहे हैं। So that is the things that were following the tradition. तो जो लोग परंपराओं पे चल रहे हैं, So all this Hindu ritual culture, putting in your house, mirchi, lemon, all these things will never save तो your ये life. सारी चीजें मुखौटे लगाना है, मिर्ची टांगना, नींबू टांगना, इससे कुछ नहीं होने And वाला। all these things will never save your life. ये कलावे बांधने से भी कुछ नहीं होने वाला। Tabi will never save your ताबीज life. भी हमें नहीं बचाएगा। You're worshipping the dead body will never save your अगर हम life. मरे हुए लोगों की आराधना कर रहे हैं, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। Or you're worshipping and you are, putting the so many, what is the ritual that you are doing, covering your head, and all these things will never अगर save आप your घूंघट life. पहन के घूम रहे हैं, उससे भी आप नहीं बचेंगे। God is looking the heart only. परमेश्वर सिर्फ ये देखता है कि आपका दिल कैसा है। So that is the tradition. यही परंपरा परमेश्वर को। And what is the religion? तो धर्म क्या होता है? Religion also, the meaning of the religion is that transmission, religion, custom, belief from generation to generation, divine authority. कि जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कोई विश्वास करते हैं, उसमें बोलते हैं कि उसमें कोई अलौकिक शक्ति है, उसको ही धर्म कहा जाता है। Believe to have the divine authority and not in the scripture. मतलब कि जो चीज लिखी नहीं है, लेकिन अलौकिक शक्ति को वो लोग मानते हैं और विश्वास करते हैं। See, they believe the supernatural, वो बात करते हैं अलौकिक चीजों की, but they are not in the scripture. लेकिन उनके वचनों में ऐसा नहीं लिखा The है। religion people, जो धर्म फॉलो करते हैं, they follow all the ritual. वो अलग अलग परंपराओं को तो फॉलो कर रहे हैं, They follow all the rule and regulation. सारे नियम और कानून को तो फॉलो करते हैं। Now in Hindu there is so many fasting. आप ये देखिए, हिंदू लोगों में कितने तरह के उपवास होते हैं। Or you are early in the morning you pray to the tulsi tree. All या this सुबह thing. उठ के वो तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, आरती करते हैं। सुबह शाम कैंडल जलाता है और तुलसी को क्या है कपड़ा पहनाता है। हाँ, तुलसी को कपड़े बनाते हैं। In the tree you put a cloth. कपड़ों को पौधों को भी कपड़े पहनाते हैं। So all these things when you see nicely, we human beings are really pagal. लेकिन आप खुद सोचे, पौधे को कपड़े पहना रहे हैं, क्या कर रहे All हैं? these things are religion, they believe, and they think that these are working. ये सब सिर्फ परंपरा या विश्वास है, उनको लगता है ये चीजें काम करती हैं। But the Bible says this will never save your पर life. बाइबल कहती है चीज आपकी कभी कोई जीवन नहीं बचाएगी। God is the one who giving tulsi plant. परमेश्वर ने तुलसी का पौधा दिया है। God is the one who created you. परमेश्वर ने आपको बनाया है। We should worship the person whom you created. तो जिसने आपको बनाया है, आपको उसकी आराधना करनी है। We should not worship the God, the things that you are getting. लेकिन जो चीजें हमें रोजमर्रा में मिलती हैं, उनकी आराधना हमें नहीं करनी है। We should not worship the things that you make. जो चीजें अपने हाथों से हमने खुद बनाई है, उनकी आराधना हमें खुद We should करनी not है। worship the things that you discover. ये जो चीजें हमने ढूंढी है, उनकी पूजा पाठ
पाठ नहीं करना है। We should not worship that some people become a powerful. कई लोगों को अगर कोई में बहुत शक्ति है, किसी इंसान में बहुत शक्ति है, वो बहुत बड़ा है, उसकी आराधना नहीं करनी है। But we should worship the God who created you. लेकिन हमें उसकी आराधना करनी है जिसने हमें बनाया है, We should worship the God who has created the heavens and the universe, जिसने स्वर्ग, धरती और ब्रह्मांड को बनाया, उसकी आराधना करनी है। not the products. लेकिन जो उसने चीजें बनाई हैं, उन चीजों की आराधना नहीं करनी है। So that is the religion that who believe, if you're fasting, then you'll be saved, and if you're worshiping every day, you do puja, then you'll be saved. But you are not saved. लेकिन लोगों को लगता है कि हम अलग तरह के व्रत करेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो उन चीजों से हम बच जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। Or if you are not eating meat, you are not eating, so many things. All these are the religion या practice. कई लोग मानते हैं कि हम कुछ चीजों को नहीं खाएंगे, उनके खाने से हम अशुद्ध हो जाएंगे, तो वो भी चीजें बचा लेंगे, ऐसा नहीं है। All these things are made by human beings, ये सब सोच है लोगों की, और जो इंसानों ने ही बनाई, not God. परमेश्वर ने नहीं। Some people say if you eat cow, buffalo, that become an enemy. लोगों को लगता है कि अगर हम जानवर को, कोई भी जानवर को खाते हैं तो वो भी गलत है। And some people eating vegetables, then we think that they are holy people. लोगों को लगता है कि अगर हम शाकाहारी और मांसाहारी नहीं हैं तो हम बहुत पवित्र हैं। Some people still they are not eating lasan, pear, and they think that they are Brahmin, they are holy people. लोगों को लगता है हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो हम ज्यादा पवित्र होंगे। No. All these things will never make you holy. ये सब चीजें आपको पवित्र नहीं करती हैं। You are not eating meat will never make you holy. अगर आप मांस नहीं खा रहे तो उससे आप पवित्र नहीं बन जाते। You are eating vegetable will never make you या holy. आप आलू सब्जी खा रहे हैं तो उससे पवित्र हो जाएंगे, ऐसा Those नहीं है। things will never take to heaven. ये चीजें आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएंगी। These are the human being making. ये इंसानों ने अपनी सोच से बनाया है। They are not in the scripture. ये वचन में कहीं नहीं लिखा है। That is why God is against the traditions and religion इसीलिए practice. ही परमेश्वर परंपराओं के खिलाफ है। That's why in this chapter today we see. तो इसलिए आज हम इस अध्याय में क्या देखते हैं? So traditions and belief, generation to generation, everywhere you go there is a traditions and religion. आप देखें पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग जगहों पर बहुत सारी तरह की परंपराएं चलती हैं। Church has a tradition. So many tradition every church. आप देखें चर्चेस में, कलीसियाओं में भी अलग अलग तरह की In your परंपराएं house चलती you हैं। have a tradition. आपके घर में भी अलग तरह की परंपरा होगी। Sport has a tradition. स्पोर्ट, Sport they have some rule and regulation. आप ये देखें जो लोग खेल कूद करते हैं उसमें भी अलग अलग तरह के नियम कानून होते हैं। University there is a tradition. महाविद्यालयों में भी अलग अलग तरह की परंपराएं Rule चलती हैं। and regulation in the अलग university. अलग तरह के नियम और कानून चलते So हैं। all these things are following other tradition. ये सब चीजों के पीछे चलना ही परंपराएं So हैं। everywhere there is a tradition. हर जगह पे अलग अलग तरह की परंपराएं हैं। But all these things are made by human beings. लेकिन ये सब चीजें सिर्फ इंसानों ने ही बनाई है। By following nicely with the religions and tradition will never save you. अगर आप परंपराओं को बहुत अच्छे से भी करेंगे तो भी वो आपको कभी स्वर्ग नहीं लेके जाएंगे। Every day you wake up early in the morning taking bath and you clean your house and worshiping will never save your life. अगर हम ये सोचते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के घर की सफाई करके पूजा पाठ करेंगे उससे हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं। I am coming from Manipur. पास के मणिपुर से आई हूँ। In Manipuri people there is a Hindu people. मणिपुर में बहुत सारे हिंदू लोग रहते हैं। They used to wake up early in the morning. वो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। They took bath whether winter or summer. सर्दी और गर्मी में सुबह जल्दी उठ के नहा लेते हैं। And after that they go to kitchen. उसके बाद ही रसोई में जाते हैं। Without taking bath you cannot cook. बिना नहाए आप खाना नहीं बना सकते। So you are not taking bath and you cook, you give food, the family will not eat. अगर आपने नहाया नहीं है और आपने खाना बना लिया, उस खाने को आप परिवार को देंगे, कोई नहीं खाएगा। They think that taking bath is the holy. वो लगता है कि अगर हम नहा लेंगे तो हम शुद्ध हो जाते हैं और खाना बनाएंगे तो वो साफ है। All these things will never holy. ये सब चीजें आपको पवित्र नहीं करती हैं। Holy talk about our heart. पवित्रता ही हमारे दिल में होनी Outside चाहिए। you may be very clean nicely. बाहर से तो एकदम टिप टॉप लग रहे हैं। I may be wearing new clothes. बाहर से कह रहे हैं नए नए कपड़े पहन लिए, But inside is dirty. लेकिन अंदर गंदगंद सोच God है। is not looking at all this stuff. परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को देखते ही नहीं है। God is looking at your heart. परमेश्वर हमारे दिल को देखते हैं। You are following all the rule and regulation. आप सारी परंपराओं, सारे नियमों का पालन तो अच्छे से कर रहे हैं। God is not looking at all these things. और परमेश्वर उसको देखता भी नहीं है। God is looking at your heart. परमेश्वर देखता है कि दिल के अंदर क्या है। You are following all the ritual. आप सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। सुबह शाम जल्दी आके रिचुअल पूजा करो, कुछ करो, फास्टिंग करो. But if your heart is not clean, अगर आपका दिल साफ नहीं है, आपका घर, आपके कपड़े, आपकी शक्ल साफ है, उससे कुछ नहीं होगा। so God is not against all these rule and regulations and practice. तो परमेश्वर इन सारी परंपराओं, इन सारे नियमों के खिलाफ है। So everywhere you go, तो जहाँ पर भी आप there जाएं, is a rule and वहाँ पर regulation. कोई ना कोई नियम कानून होता ही होता है। Everywhere.
हर जगह पे You go to any family. आप किसी परिवार में चले जाओ, I have a family. पास से मेरा भी एक परिवार My है। family, what is the rule? इनके परिवार का क्या रूल है? My parents will say we need to go to church. इनके पापा कहते हैं कि चर्च जाना है। Yes, that is good. ये तो अच्छी बात है। And every night we must pray. और हर रात को प्रार्थना करनी We must read Bible. बाइबल पढ़नी है। सुबह early morning we must pray. सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना करनी है And we must give tithe and offering. और दशवांत और भेंट चर्च में देना है, You must give it. देना है। But if I am not believing in Christ, far away I practice all these rule and regulation, I will not say. लेकिन अगर कोई भी घर का व्यक्ति जो अंदर से दिल से प्रभु को नहीं मानता और वो ये सारी चीजें कर भी रहा है, प्रार्थना कर रहा है और टाइथ ऑफरिंग दे रहा है, तो उससे कोई फायदा नहीं। That is the family practice. तो ये फैमिली का नियम है। If I am not doing my heart, अगर पास्टर कह रहे हैं अपने दिल से अगर प्रभु की सेवा नहीं कर रही हो, I will not say. तो फिर कुछ भी करने का फायदा नहीं। Just to fulfill the law. सिर्फ कि मुझे करना चाहिए इसलिए मैं कर रही हूँ, उससे कोई फायदा नहीं होगा। Even the Christian, मसीह लोग भी, today many people they call upon their name, they are Christian, आज बहुत सारे लोग अपने आप को क्रिश्चियन मसीह तो कह देते but they हैं, don't know Jesus. पर अंदर से यीशु को जानते They नहीं। are far away from तो Jesus. यीशु से कहीं कहीं दूर है, They go every Sunday to church. लेकिन हर संडे चर्च जाते They हैं, give in tithe and offering टाइथ और ऑफरिंग भी देते हैं, because this is rule and regulation. क्योंकि ये रूल है ना, करना पड़ेगा। They follow, वो कर रहे हैं, but they didn't follow Jesus. लेकिन यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं। This thing will never save you. तो ये चीजें आपको जीवन कैसे बचाएंगी? So all this rule, regulation will never save तो you. ये सारी परंपराएं आपके जीवन को नहीं बचाती। Only our heart. सिर्फ आपका दिल क्या है प्रभु को Believe in Jesus. यीशु में विश्वास Only करें। Jesus Christ will save your सिर्फ life. यीशु मसीह ही आपके जीवन को बचाएगा। Only Jesus Christ will deliver your life. सिर्फ आपके जीवन को छुटकारा Only देंगे। Jesus Christ will give you salvation. सिर्फ वही आपको उद्धार देंगे। Only Jesus Christ will save your solution. सिर्फ वही आपको हर परेशानी का हल Healing, देंगे, deliverance. चंगाई देंगे, When छुटकारा there is देंगे। a God present, जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है, demons cannot work. तो शैतान वहां रुक नहीं सकता। Satan cannot work. शैतान वहां नहीं रह सकता। But the practicing rule and regulation tradition, लेकिन अलग-अलग परंपराओं को फॉलो करने से, and you are far away from your heart from God. लेकिन आपका दिल तो प्रभु से कई किलोमीटर दूर है। That's why today many people pray, इसलिए आज बहुत सारे लोग प्रार्थना तो but करते their हैं, prayer is not उनकी answered. प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आता है? You are giving tithe, but you are never blessed. आप टाइथ भी दे रहे हो, लेकिन फिर भी आशीष नहीं Bible है। says, "Blessed are those who are giving." बाइबल में तो लिखा है जो देते हैं वो आशीषित हैं। Why? तो आपके देने से आशीष क्यों नहीं आ रहे? You pray for healing, you are not getting. आप प्रार्थना कर रहे हैं चंगाई के लिए, चंगाई क्यों नहीं आती? Why? क्यों? Because you are doing for rule and क्योंकि regulation. आप सिर्फ नियम का पालन करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल नहीं है। And you come for church just for present. You know, when we go to school, sometimes for present. कई We बार don't want absent. कई बार हमारे स्कूल में हमारे जाने का मन नहीं होता, क्लास में जो पढ़ाते समझ नहीं आता, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट दिखाने के लिए प्रेजेंट चले जाते हैं। Because हम absent find देते हैं. क्योंकि अगर एब्सेंट हो जाएंगे तो लास्ट के अंदर रिपोर्ट कार्ड में लिखा है। But that child will never grow. लेकिन जो बच्चा सिर्फ प्रेजेंट होने के लिए स्कूल जा रहा है, वो कभी नहीं पढ़ सकता। The child will never get वो knowledge. बच्चे में कभी बुद्धि, कभी समझ, कभी जानकारी नहीं आएगी। The same thing if you come here to present your body. इसलिए अगर आप चर्च में भी आ रहे हैं सिर्फ अपने शरीर की उपस्थिति दिखाने के लिए, Then you will never receive and you go back the same तो way. आशीष लेकर आप नहीं जाएंगे, जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। The same thing Hindu religion culture you follow and just to fulfill the law and tradition. तो ऐसे हिंदू समाज में कई बार हम परंपराओं का पालन इसलिए करते हैं कि हमें करना होता है बस, So this thing will never save you. लेकिन ये चीजें हमारे जीवन को नहीं This thing बचाएंगी। will never save you. ये चीजें कभी आपके जीवन को नहीं बचाएंगी। People say I put it, I am saved, no demon attack, but still they come for prayer. लोग कहते हैं कि कलावा हमने बांध रखा है क्योंकि हमें शैतानी शक्तियों से बचाएगा, लेकिन कलावा बांध के भी आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम ठीक नहीं हो रहे। They put tabi to protect, but still they are sick. वो ताबीज पहन के सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो फिर भी बीमार होते हैं और चर्च में आके प्रार्थना करते हैं। This thread will never save your life. ये धागा आपको कैसे बचाएगा? All kinds of meaty and whatever you follow the tradition will never save जो you. भी चीजों का आप परंपराओं की तरह पालन कर रहे हैं, वो चीजें आपको कभी नहीं बचाएंगी। Only Jesus सिर्फ Christ यीशु मसीह आपको who बचाएगा। believe on me. जो आपको Whoever believe. जो भी उन पर विश्वास That's करे। why John 3:16. इसलिए यमुना 3:16 में क्या लिखा है? God sent the world, Jesus Christ, the only begotten Son. कि परमेश्वर ने इस दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया, Whoever believes, और जो भी उस पर विश्वास they करेगा will be saved. वही बचेगा। If you didn't believe अगर आप Jesus, विश्वास नहीं करेंगे you will never तो save. आप नहीं बचेंगे। You follow all the rules and आप सिर्फ regulations, परंपराओं का पालन तो कर रहे हैं, you will never save. लेकिन उससे आप All बचेंगे। the ritual that you are doing, सारे परंपराएं जो आप कर रहे हैं, you will never save. उससे हम नहीं बचेंगे। And then that is why Jesus is speaking here in the Mark chapter 7. इसलिए मरकुस 7 के अंदर यीशु मसीह क्या बोल रहे We हैं? have read. हमने जो पढ़ा अभी, We see the chapter 1 of Mark 7, 1 to
enter. मरकुस 7 का 1 से लेकर 23 तक हमने पढ़ा। There is a practice and religion. तो कई तरह का धर्मों का पालन होता है। What is practice? किस तरह की प्रैक्टिस, किस तरह की Pharisee people. फरीसी लोग क्या करते You हैं? have already read. जैसे कि आपने पढ़ लिया, Pharisee people, what they do? फरीसी लोग क्या करते हैं? Before they eat, खाना खाने से पहले they used to wash their hand. वो अच्छे से अपने हाथों को धोते There हैं। is a culture. ये उनकी परंपरा है, There is a culture generation to generation to follow. जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। And then now, in the place of disciples, they were come and then they are now washing their hand and eating. अब क्या हुआ कि चेले तो आए, चेलों ने तो खाना सीधा खा लिया, अपने हाथ तो धोए नहीं। Then Pharisee people तो saw. फरीसी लोगों ने देखा Then Pharisee people say, और कहा, they come to Jesus. वो यीशु के पास आए, You see, अरे देखो अपने चेलों को, your children and your disciple, they are not washing their hand and eating. अपने चेलों को तो देखो हाथ बिना धोए खाना खा रहे हैं। They are sinners. कितने बड़े पापी हैं ये, They are dirty. कितने गंदे हैं ये। This is our old tradition. You need to wash ये their तो hand. हमारी परंपरा है कि हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं। That is in Mark chapter 7. मरकुस 7 में लिखा This है, is the following of the tradition of the Jew culture. ये तो यहूदी समाज की परंपरा है। Then, because of the argument, और उस बातचीत में, उस बहस में, so the Pharisee, Sadducee people, they follow all the religion law. फरीसी और सदूकी लोग सारे के सारे रीति रिवाज और परंपरा को They used पालन to करते follow थे। the tradition, वो परंपराओं का पालन कर रहे but थे, they never follow Jesus. तो यीशु के पीछे नहीं चलते थे। They never follow Jesus. वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। They wash their hand, हाथ तो धोते थे, but their heart are never clean. पर उनका दिल साफ नहीं था। They are so hypocrite. वो बहुत ज्यादा पाखंडी थे, They are not forgiving. माफ नहीं करते थे They used लोगों to को। show people public to public that they are religious people. वो अपने आप को बहुत धर्मी दिखाते थे और पब्लिक में जाके अपने आप को शो करते थे। That is why when you see the full of Bible Pharisee, अगर आप इसलिए बाइबल के अंदर फरीसी लोगों को देखें, they are the religious वो people बहुत धर्मी लोग थे। in Jesus' time. यीशु मसीह They are the pastor, missionary, they preach the gospel in the synagogue. फरीसी सदूकी लोग मतलब जो वहाँ पर आराधनालयों के अंदर परमेश्वर का प्रचार करते थे। They used to teach the law book, वो परमेश्वर की कानूनी किताब मतलब मूसा की किताबें जो उसने लिखी थी वो बताते समझाते थे, but they never followed. लेकिन खुद फॉलो नहीं करते थे। They just follow the tradition. वो सिर्फ परंपराओं का पालन कर रहे थे। So now they come to Jesus. फिर वो यीशु के पास Your आए, disciples are not washing their hands. उन्होंने क्या बोला, यीशु मसीह तुम्हारे चेहरे तो हाथ They are not following our old वो tradition. हमारी पुरानी परंपराओं का पालन नहीं कर रहे They हैं। are dirty. अरे गंदे लोग हैं They ये, are clean, not cleaning. एकदम अशुद्ध लोग हैं ये। Then Jesus come. तो यीशु ने क्या कहा? What Jesus respond? क्या कहा? Okay. ठीक है, Did you read the book of Isaiah क्या तुमने यशायाह की किताब पढ़ी? and the 10 commandment? आपने 10 आज्ञाएं पढ़ी Respect your mother and father. कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना Honor चाहिए, your father, mother. उनकी इज्जत करनी चाहिए। See, respect, honor is different. आप ये देखें, इज्जत करना और किसी को ऊपर उठाना God अलग didn't अलग say है। that worship your father, mother. बाइबल में ये नहीं लिखा है कि माता पिता की आराधना करनी है, God said respect, लेकिन honor. लिखा है इज्जत करनी है। God didn't say obey your parents. ये नहीं लिखा है कि उनकी हर बात को मानना है, God said respect, give लेकिन respect. इज्जत देनी है। Because our parents are human beings, they can teach you wrong things. क्योंकि हमारे माता पिता भी इंसान और हमें गलत चीज सिखा सकते हैं। So Bible said respect and honor your parents. That Bible didn't say that, obey your parents. No, God said obey God. परमेश्वर ने लिखा है कि मेरी आज्ञाओं पर चलो, लेकिन अपने माता पिता की इज्जत करो। That is how many people think, obey my parents, and then these things are, so many people, they are under the family, the parents are torturing their children, and they thought that their parents are God. और इसलिए कई बार क्या होता है, जो लोग परमेश्वर में नहीं होते अपने बच्चों से गलत व्यवहार करते, गलत चीज सिखाते हैं और बच्चे को मानना पड़ता है, उन्हें लगता है कि माता पिता की बातों को मानना ही पड़ेगा। But the Bible says if your parents do wrong thing, you should say this is wrong. लेकिन बाइबल बताती है अगर आपके माता पिता कोई भी काम गलत करते हैं तो ये आपका भी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें प्यार से समझाएं कि ये चीज आप गलत कर रहे हैं। So today we all are worshiping idols because our parents are teaching us. आज हम में से बहुत सारे लोग पहले मूर्ति पूजा करते थे या करते हैं, वो इसलिए कि मेरे माता पिता करते हैं, उन्होंने सिखाया तो हम कर रहे हैं। So that is the you obeying. क्यों? क्योंकि माता पिता की बातों को मानना है, They will lead to hell. और लेकिन ये बात मानना तो मैं नरक में ले जाएगा। But Bible said respect. लेकिन बाइबल कहती है इज्जत दो, Bible said obey God. बाइबल कहती है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो So that our life will be saved. ताकि हमारा जीवन बचने पाए।
So now there is the tradition that they follow in this Bible. तो इस बाइबल में बता रहे हैं कुछ परंपराओं को वो फॉलो करते So हैं। the Pharisee people following the traditions and तो religion. फरीसी लोग परंपराओं का पालन कर रहे थे। Then Jesus bring up the तो question: यीशु ने कहा, Are you obedient to your parents? क्या अपने माता पिता की तुम इज्जत करते हो? Are you respect your parents? उनकी इज्जत करते हो? They never respect their parents. वो अपने माता पिता की तो इज्जत नहीं करते। They never honor their parents. अपने माता पिता की इज्जत नहीं They read 10 commandments but they never follow. 10 आज्ञा को पढ़ा तो है लेकिन उनको अपने जीवन में उतारते नहीं है। So God giving the answer to the Pharisee. तो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने फरीसियों को जवाब दिया। And then also God said, when you read the whole chapter, we have already read before. And then also God also said, तो यीशु ने कहा, Jesus also said, यीशु ने कहा, something that you eat, कोई चीज अगर आप खाते हो, food or anybody that giving, कोई भी इंसान को कुछ देता है खाने की चीज आप खा when लेते you हो, eat, जब उसे खा लेते हो, but it will go out with toilet and urine. वो तो आपने खा लिया, आपके पेट में डाइजेस्ट हुआ, पाचन क्रिया हुई So और if एक the बार person पैसा is निकल not गया, washing their hand, eat, अगर कोई इंसान ने अपने हाथ नहीं धोया कुछ खा लिया, it will go to stomach तो वो तो उसके पेट में ही and जाएगा coming out number 1, number 2. और टॉयलेट में निकल जाएगा। So Jesus said, this is nothing. तो यीशु मसीह कह रहे इससे फर्क नहीं पड़ता। Washing hand or not hand, there is not a problem. हाथ धोना है नहीं धोना इससे फर्क नहीं They पड़ता। eat and they go. वो तो खाओगे तो निकल ही That is जाएगा। not defiled. ये चीजें आपको खराब नहीं करती हैं। This is not sin. ये पाप नहीं है, This is not dirty. ये गंद नहीं है। But लेकिन गंदा क्या है? the person who conceive, see, in their heart, come out from your mouth, come out from your heart, there is a sin. लेकिन कोई इंसान के दिल में बुरा बना हुआ है, भरा हुआ है, अपने मुंह से गलत बोल रहा है, ये पाप है। That's what Jesus was telling very clearly. इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे साफ-साफ क्या बता रहे हैं? Turn again to Mark chapter 7. खोलते हैं मरकुस 7 दोबारा से एक बार। What Jesus said. यीशु ने क्या कहा? And then you see, you just read again in the 18 and 14 to 23. एक बार 14 से 23 तक मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं, वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास में घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। Amen. So Jesus was giving the answer to the Pharisee. यीशु मसीह फरीसियों को जवाब दे रहे थे, And who are following traditions and rules and जो regulations. अलग-अलग परंपराओं और नियमों का पालन कर रहे थे। This thing will not save your life. ये चीजें आपके जीवन को नहीं When बचाएंगी। you see the how they follow जब आप देखते हैं कि वो कैसे करते थे, in the 7 आप देखिए 7वें वचन में and verse 4, and these people they follow, there are many other things, man-made law, tradition, handed down to them. They follow diligently, just like washing their cup and pills and copal utensil. तो यहाँ पर आप देखते 7वें अध्याय में क्या लिखा है कि लोग क्या करते अपने हाथों को अच्छे धोते, बर्तनों को अच्छे से धोते थे, कि ये चीजें हमें शुद्ध रखनी जरूरी है। So now these Pharisee people follow the tradition. मतलब फरीसी लोग परंपराओं का पालन करते हैं। They taking nicely, maybe देखते हैं मंदिर में कटोरा, like yellow pot, something that for ritual, you think that these are the very clean and you need to wash and keep तो आप nicely. देखिए मंदिरों में भी लोग पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं और उनको बहुत चमका के रखते हैं, उनको लगता है कि ये शुद्ध है तो परमेश्वर खुश है। And then also you put in your house so many ritual things. या घर में परंपराओं के नाम से बहुत सी चीजों को रखते हैं। Red kapra, I don't know what to say, covering, all these things are the ritual property. तो कह रही कई लोग अपने घर में लाल रंग का कपड़ा भी रखते हैं और उनको लगता है कि ये चीजें भी हमें शुद्ध करती हैं। So in mandir time you use so many ritual things. मंदिरों में बहुत सारी चीजें परंपराओं के लिए रखी जाती है। So you keeping in your house nicely. और उसको अच्छे से तय करके हम अपने ट्रंकों में, अलमारियों में रख देते हैं। That is God is talking about here, chapter 4 and 5. यहीं पर परमेश्वर देखते हैं
ताकत है कि चौथे पांचवें वचन में यही बता रहा है, This thing will never save it. ये चीज हमारे जीवन को नहीं बचाती। So now Jesus said, अब यीशु ने कहा, washing hand, eating will never save. साफ हाथों से खाना या साफ बर्तन में खाना हमें नहीं बचाता। And the person who gives something, और जो कोई इंसान कुछ देता है, the person who gives something, कोई इंसान जब कुछ देता है, it will never save your life. वो आपके पेट में जाएगा, लेकिन वो चीज आपको अशुद्ध नहीं It करती, will never cleanse your life. वो आपको साफ भी नहीं करती और अशुद्ध भी नहीं करती। You eat and you go. आपने खाया और टॉयलेट में निकल गया। So washing hand, this and that Jesus was telling, it will never save. तो यीशु मसीह ने कहा कि हाथों को साफ तरीके से धो के खाने से कुछ नहीं। My disciple no washing their hand, eat, let it be eat. यीशु What is मसीह कह रहे that? हैं कि अगर मेरे चेहरे बिना हाथ धोए खाना खा रहे तो उसमें क्या परेशानी, खाने तो They are not following the tradition. वो परंपराओं का पालन नहीं कर रहे हैं, They are saved. वो फिर भी बच जाएंगे। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, eating, somebody giving. That's why I always say to you all, see, पास्टर when somebody curses you, हमेशा कहते हैं कि अगर कोई आपको श्राप भी देता है or somebody गाली देते हैं, या कोई गाली देता है आपको, or somebody putting you witchcraft black या magic, आप पर कोई काला जादू तंत्र मंत्र कर देता है, don't be afraid. तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। Just people giving you, वो आपको कोई दे रहा है, they will never kill you. वो आपको भी मारेगा नहीं। The curse will never come upon you. अगर कोई आपको श्राप देता है, वो श्राप आप पे लगेगा नहीं। Black magic, kala jadoo, don't be afraid. काले जादू तंत्र मंत्र से कभी नहीं डरना है, They are nothing. वो कुछ भी नहीं है। But we should afraid God. लेकिन हमें डरना किससे है? परमेश्वर से। See, somebody putting you, कोई आप पर काला जादू कर रहा है, nothing. कुछ नहीं है ये। If you think that there is nothing, अगर आप ये सोचते हैं कि कोई मेरे ऊपर काला जादू कर रहा है, मुझे कुछ नहीं होगा, there is nothing. तो कुछ नहीं होगा। But if you think that, oh, there is a God, लेकिन अगर आप सोचते and हो, Satan is working, I will die, my family will die, surely Satan will work and you लेकिन will अगर आप die. सोचते हैं और सामने वाला मुझे श्राप दे दिया, बुरा बोल दिया, किसी ने पैसे मांगने मैंने नहीं दिए, उसने कुछ गलत बोल दिया, तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा, मेरे परिवार में लोग मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तो हो ही जाएगा। See, just understand the word of तो God. आप समझे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Jesus said to defy your life, to destroy your life, somebody putting, giving, eating, this thing will never save, this thing will never heal, this thing will never danger to your life, it will go out. तो यीशु मसीह ने कोई आपको कुछ भी खाने को देता है या कुछ भी श्राप देता है, काला जादू कर देता है आपके ऊपर, ये चीजें आपके अंदर जाके कभी भी आपको अशुद्ध नहीं करेंगी। But if you believe it, लेकिन आप विश्वास करते कि ये करेगी, then it तो will ही work in करेगी। your life. There is a Manipur, from Manipur, near the Imphal, there is a Romai village. पास्टर कह रहे हैं कि इम्फाल में एक रोमई गांव है। So they called me this week. पास्टर कह रहे हैं कि इस हफ्ते उन्होंने पास्टर को बुलाया। So they say that they did do Christmas nicely. उन्होंने बोला क्रिसमस बहुत अच्छे से हुआ, And that place now people are not entering. Because of they do so many colors, they do black magic. Now people are afraid to enter to their house to house. वो कह रहे हैं क्रिसमस के टाइम बहुत सारे लोगों ने काला जादू करा और लोग डरे हुए हैं और एक दूसरे के घर जाने से डर रहे हैं। And then nobody cannot come out from their gate. कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है। Then I say in my heart, तो पास्टर ने अपने दिल में कहा, God is more powerful. अरे परमेश्वर में ज्यादा शक्ति है। So Satan is the one who makes them fear. तो शैतान ही है जो हमारे दिलों में डर डालता है। Oh, if I go and eat in that house, my stomach अरे will अगर वो pain. आंटी खड़े कि मैंने खाना खा लिया ना तो मेरे पेट में परेशानी आ जाएगी। Or if I go to that place, I drink water, then I will have a अगर मैं problem. किसी का पानी पी लेना तो मैं बीमार हो जाऊंगी। और लोग हम लोग के लिए खाना देते हैं तो हम लोग का घर में काला जुदू शुरू कर दिया. See, all these are the belief of you. ये सिर्फ आप ही के अपने विश्वास हैं, Nothing. कुछ नहीं है ये। That's what Jesus said. इसलिए यीशु ने कहा, All these things, whatever people give is nothing. They will not kill you. They will not destroy your life. जो भी चीजें लोग आपको देते हैं वो चीजें कभी आपको अशुद्ध नहीं करेंगी, ना ही आपको मारेगी। But the person who do, लेकिन जो इंसान कर रहा है, they are danger. जो कर रहा है, जो गाली दे रहा है, उसी को फर्क The पड़ेगा। person who curse you, जो आपको श्राप देगा, he himself is the danger. आप देखेंगे कि उसी के जीवन में खतरा आ जाएगा। The person who do black magic with you, जो आपके ऊपर काला जादू करेगा, they themselves is the danger. उसी के जीवन में परेशानी आएगी। Because Jesus said, anything that come out from the heart, क्योंकि यीशु ने कहा कि जो भी आपके दिल से बाहर निकलेगा, that is a sin. वो पाप आएगा। That is the wicked. वही चीज गंदी अगर That is है, the devil. वही आपको अशुद्ध करेगा। So that is what Jesus tells to the Pharisees. इसलिए यीशु ने फरीसियों से कहा, Giving food and without washing, clean, eating, nothing. बिना हाथ धोए खाना खाने से कुछ नहीं होने वाला। But whatever come in your heart, लेकिन आपके दिल से क्या बाहर आ रहा है? what Jesus said, envy, यीशु ने कहा, jealousy, witchcraft, black magic, काला जादू, anger. गुस्सा, The person who do जो इंसान करता है, comes from your heart. वो आपके दिल में पाप उत्पन्न हुआ, That is a sin. वो पाप है।
that is the devil. वही शैतान, That is the defiled. वही आपको That अशुद्ध is the करता है, unclean. वही गंदी चीज है। So Jesus is speaking. यीशु क्या कह रहा है? And Jesus is speaking to us. यीशु आपसे बात कर So रहा है। anything the people giving you तो अगर कोई आपको कुछ देता है or putting your black magic, या आपका काला जादू कर भी देता है, nothing will तो happen. डरना नहीं है। But the person who do, लेकिन जो करेगा they are the danger. वही भुगतेगा, They will go to hell. वही नरक जाएगा। You will not go to hell. आप नरक नहीं जाएंगे। The person who's sitting you, जो इंसान आपको धोखा दे रहा है, sitter will go to hell. धोखा देने वाला नरक जाएगा, Lie will go to hell. झूठ बोलने वाला नरक जाएगा, Murder will go to hell. जो खून करता है वो नरक The जाएगा। person who die with the murder will never, it will go to heaven. अगर किसी ने किसी को खून कर दे तो मरने वाला के साथ नहीं, लेकिन मारने वाला नरक जाएगा। That is how God is speaking to us. ऐसे ही परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। So tradition and religion follow will never save your तो life. परंपराएं कभी हमारे जीवन को नहीं बचाएंगी, Only Jesus Christ सिर्फ यीशु बचाएगा, will go to save our life. वही हमें बचाएगा। And all the practice will never save your ये life. सारी परंपराएं हमें नहीं बचाएंगी। And God is not seeing all this things. परमेश्वर इन चीजों को देखता भी नहीं है, But God is seeing your heart. परमेश्वर के दिल को देखता What is in your है। heart? आपके दिल से क्या निकल What रहा है? is your intention to do somebody life? किसी के जीवन में कुछ भी करने के लिए आपके मन में सोच क्या थी करने की? So the person who do to you is no harm. अगर कोई इंसान आपके लिए कुछ भी करता है वो कुछ भी अशुद्ध नहीं करेगा, But the person who do evil conceiving. लेकिन जिसके दिल में बुराई और गलत चीजें उत्पन्न हो रही हैं। So Jesus was telling to the Pharisees, तो यीशु मसीह फरीसियों से क्या कह you रहे हैं? are the tradition you follow will never save कि you. तुम परंपराओं को फॉलो कर रहे हो और परंपरा तुम्हें कभी नहीं बचाएंगी। And religion that you follow will never save you. जो अलग-अलग धर्मों का पालन तुम कर रहे हो उसमें कभी नहीं बचाएगा। But you never follow me. लेकिन तुम मेरे पीछे तो नहीं आ रहे। Jesus said, you never follow my teaching. यीशु कह रहे हैं जो तुम वचन को समझाते हो खुद तो फॉलो नहीं Okay, you करते। wash your hand, हाँ ठीक है, हाथ धो लिया, but your heart are dirty. पर दिल तो गंदा है। That is Jesus speaking to us. यीशु मसीह यही कह रहे हैं। You say to people, pray, आप लोगों से कह रहे हो प्रार्थना करो but we are worshiping, और आराधना करो, but our heart are far away. और आराधना तो कर रहे हो लेकिन दिल तो प्रभु में That's what नहीं है। Jesus said in the verse 6. हम देखते हैं यीशु मसीह 6वें वचन में क्या कह रहे हैं? What Jesus said? यीशु ने कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। Amen. And then see here the Bible says you're worshiping but only your mouth. तो इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम आराधना तो बहुत अच्छी कर रहे हो लेकिन सिर्फ ज़बान से अपने मुंह से कर रहे हो, Your heart are far away. दिल तो बहुत दूर है मुझसे। See, sometimes we worship God. कई बार हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हालेलुया। आपका माउथ हालेलुया बोलते हैं, दिल तो कहाँ घूमते हैं, खाना चीज में और घर में, काम में, दूसरा चीज में. So our heart are far, your mouth are speaking, your heart are far away. मतलब आपका मुंह तो बोला लेकिन आपका दिल प्रभु में नहीं है। ऐसा होता है नहीं होता है? सच है या नहीं सच है? मे भी होता है कभी-कभी. See, there is a God hate those things. इसलिए परमेश्वर को चीजें पसंद नहीं है। Bible says you're worshiping your mouth, लोग बाइबल बताती है अपने मुंह से तो तुम बहुत अच्छी but आराधना your कर रहे हो, heart are far away. पर दिल तो दूर है। You are simply sitting in this church. आप इस चर्च में तो बैठे हो, Some people are listening. कई लोग दिख तो रहे हैं कि Their, सुन your रहे हैं। eyes are seeing, आप तो देख रही है, but God see your heart. पर परमेश्वर तो दिल देख रहा है। Some people कब पास्टर खत्म करेगा क्या? कब खत्म करना है? ये क्या बोल रहा है? बाबा 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 करके इधर चला रहा है. हम इधर भूख लगा के. We are hungry and sitting. आप भूखे पेट से बैठे हुए हैं। So you are not listening. तो वचन तो नहीं But सुन your रहे हैं। eyes is seeing with me. पर आगे तो पास्टर को अच्छे से देख But रहे हैं। your heart is somewhere. पर दिल तो कहीं और है। Your heart is full of bitterness, दिल के अंदर कड़वाहट है, full of envy. बहुत गुस्सा जब दुश्मनी खत्म है। करेंगे तो उनका घर जाके ठम करेंगे. So when you are like this, जब ऐसे होते हो, there is a Jesus is speaking at 7. तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं 7वें वचन में? Your mouth is praising God, talking, prayer, fasting, but your heart are far तो मुझसे away. आराधना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, उपवास भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिल मेरे अंदर नहीं है। All this mouth where God is not listening. तो प्रभु जब मुंह से बोलते हो सिर्फ देखता नहीं कितना है। चिल्लाओ, ठीक है? आपका दिल से तो प्रभु नहीं चलता, नहीं सुनता. आप इतना ये गर्मी तोड़ जाओ, ठीक है? आपका चिल्ला से, लेकिन if your heart is not there, God is अगर not आप यीशु मसीह को कितनी जोर से चिल्ला रहे हैं और अगर आपका दिल परमेश्वर में सही नहीं है तो You are gifted, you are so talented. I am preaching
God is not with me. अगर आपके अंदर परमेश्वर कोई वरदान डाल दिया, उस वरदान का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल प्रभु में नहीं है। जैसे पास्टर ने कहा, मैं प्रचार तो कर रही हूँ क्योंकि परमेश्वर ने इनको वरदान दिया है प्रचार करने का, लेकिन दिल सही नहीं है तो कोई फायदा नहीं। That is the thing. Pharisee people are like that. तो फरीसी लोग ऐसे ही करते थे, They are preaching. वो प्रचार तो करते थे, They are worshiping. आराधना भी करते They थे, are teaching. समझाते भी थे, They are praying. प्रार्थना भी But करते थे, Jesus said, लेकिन यीशु ने क्या कहा, your heart are far away पर from me. दिल तो तुम्हारा मुझसे बहुत दूर है, Your heart is not with me. दिल तुम्हारा मेरे अंदर नहीं। So Jesus is telling to तो you. यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे क्या कह रहे That हैं? is why sometimes our heart is far away. इसलिए कई बार हमारा दिल प्रभु से दूर हो जाता है। We are praying. हम प्रार्थना तो Our करते हैं, praying is not पर answered. प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आता? You are giving, आप दे रहे हैं, not your heart. आप अपने दिल से नहीं दे रहे हैं, Sowing. सिर्फ दिखाने के लिए दे रहे हैं। That's why we are not तो blessed. आशीषित कैसे हो जाएंगे? You are fasting, आप उपवास भी कर but रहे हैं, your heart is far. पर आपका दिल में तो गलता भरा So हुआ है। your problem is not तो sowing. उपवास करने के बाद भी परेशानी काल नहीं आएगा, Your problem never go away. आपकी परेशानी नहीं निकलेगी, Addiction never go बुरी away. बुरी आदतें नहीं निकलेगी, Kala jadoo never go काला away. जादू नहीं निकलेगा, Sickness no go बीमारियां away. नहीं निकलेगी, Your family problem never आपके go away. परिवार की परेशानी You नहीं ask निकलेगी। God. आप प्रभु से पूछें, But only your mouth. लेकिन आपका सिर्फ मुंह पूछ रहा है। God hates those things. परमेश्वर को इन चीजों से नफरत है। But God wants our heart. परमेश्वर चाहते हैं हम दिल से उनकी आराधना करें। Whatever we do, जो भी हम करें do with your heart. पूरे दिल से करें, Pray with your heart. प्रार्थना पूरे मन से Believe करें, Jesus with your heart. विश्वास करें यीशु में पूरी तरीके से, Trust with your heart. भरोसा रखें यीशु में पूरी तरीके से, Follow Jesus Christ with your यीशु heart. को चले उनके पीछे दिल से, ना कि सिर्फ पैरों से और Come मुंह to से। church with your heart. चर्च में अगर आते हैं तो शरीर नहीं मन भी Serve नहीं God with your heart. परमेश्वर की सेवा करें पूरे दिल से, Do your job with your heart. अपना काम पूरे पूरी ईमानदारी Do से your करें, business with your heart. अपना व्यापार पूरे दिल से करें, Marriage with your heart. अपनी शादी अपने परमेश्वर के भय से चलाएं, Love your children with your अपने heart. बच्चों को प्रेम करें पूरे दिल से, Love your brother and sister with your heart. अपने भाइयों और बहनों से प्रेम करें पूरे दिल से। God will surely bless you. परमेश्वर क्यों नहीं आशीष देगा? We want to sow in the world. We are so good. लेकिन हम दुनिया को तो दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बढ़िया है, I am so अरे righteous. मैं कितनी धर्मी हूँ, And I give to people like this. अरे मैं लोगों को कितना कितना देती I हूँ, helping people लोगों like की this. मदद कितनी करती But हूँ, if your heart is far लेकिन away, दिल अगर प्रभु से you दूर है, are sowing. सिर्फ दिखावे के लिए Jesus दे रहे said हो। to the people तो यीशु मसीह क्या कह रहे in, हैं in this chapter, इस अध्याय में you hypocrite. कि तुम पाखंडी लोगो? That is how Jesus said यीशु मसीह कह रहे हैं in this chapter. इस चैप्टर में You hypocrite. कि तुम कपटी हो, You are doing, तुम करते तो हो, but you are sowing. लेकिन दिखावे के लिए करते हो। All these things God really hates. इन सब चीजों से परमेश्वर नफरत करता है। You are so much righteous in front, but your heart is far away. दूसरों के सामने तो बहुत धर्मी है, लेकिन अकेले में पापी है। So that is the thing that Jesus said. All these things will not save your तो life. यीशु मसीह कह रहे हैं कि दूसरों के सामने दिखावा करने से आप कभी नहीं बच But पाओगे, believe in Jesus लेकिन Christ. विश्वास करो पूरी With तरीके your से, heart. पूरे दिल से, Follow completely. पूरी तरह से बाइबल को फॉलो करो। Today many people they come for healing. आज बहुत सारे लोग चंगाई कराने के लिए आते हैं, Today they pray to God. वो प्रार्थना करते हैं, They read Bible. बाइबल पढ़ते हैं, But still in your house, लेकिन अपने घर में you follow tradition. अभी परंपराओं को फॉलो कर रहे You हैं, follow Hindu rule and regulation. हिंदू समाज की सारी परंपराओं को फॉलो That कर is रहे why हैं, you are not saved इसीलिए completely. पूरी तरह से बचे ही नहीं है। साथ आते हैं, घर जाते हैं, सारी चीज फॉलो करते हैं. That is why God is saying, your mouth is speaking, but your heart are far away from इसलिए तो me. परमेश्वर कह रहा है कि जबान से तो मेरी आराधना करते हो, लेकिन तुम्हारा दिल मुझसे बहुत दूर है। Your heart is your mind, your body is coming to church, but your heart is in mandir. आप जहाँ पर आ रहे हो, आपका शरीर तो चर्च में आ रहा है, लेकिन आपका दिल मंदिर में बैठा है। God is not blessed us. तो परमेश्वर कैसे आशीष देगा? That's why here Jesus is speaking to us. और इसलिए यीशु आज हम सबसे क्या बात You कर are रहे हैं? worshiping, आप आराधना कर रहे हो, but your heart are far. पर आपका दिल दूर है, Only your mouth, सिर्फ मुंह बोल रहा है, only your lips. सिर्फ जबान बात कर That's रही why God is not reject. God is rejected us. है। इसलिए तो परमेश्वर ने नकार दिया है He हमें, could not able to bless us. इसलिए तो वो आशीष नहीं देते, But God wants us to come with a heart. लेकिन परमेश्वर चाहता है पूरे दिल से उनके पास आए। Amen. आमेन। So this 2023, तो ये 2023, if you really want to अगर bless, आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर आपको if आशीष you दे, really want to heal, अगर आप सच में चंगाई पाना चाहते if हैं, you really want to bless, अगर आप सच में आशीष पाना चाहते successful, हैं, सफल होना चाहते prosperity, हैं, उन्नति चाहते good हैं, health, अच्छी सेहत your चाहते हैं, family problem go away, आपके परिवार की परेशानियां दूर चली जाए, believe with your heart. तो पूरे दिल से आप विश्वास करें, Trust God with your heart. परमेश्वर भरोसा रखें पूरी तरीके से, Obey with your heart. अपने पूरे दिल से परमेश्वर की आज्ञा का पालन God will करें, surely bless you. परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। Let us set aside all the religions and tradition in the church, outside of the church, our home. तो चर्च में ही नहीं, चर्च के बाहर भी, घरों के अंदर भी आप पूरी तरह से इन परंपराओं को अलग कर दें।
Because God hates all this rule. परमेश्वर को जो से नफरत है। And then also the Bible says, और बाइबल क्या बताती है? the religious traditions do not reveal the spiritual maturity. अगर आप धर्मों और परंपराओं को पालन कर रहे हैं तो वो आप आत्मिक रूप से कितने बड़े हैं वो नहीं दिखता है। Observing all these things. अगर आप अभी भी इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, A religion habit. अगर एक धर्म की आदत, No, you become a habit. एक आदत हो जाती है परंपराओं को follow Practicing. करने की, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, This thing will never save you. ये चीजें कभी आपका जीवन नहीं बदलेगी, Only Jesus Christ लेकिन will सिर्फ save you. यीशु मसीह ही बदलेंगे। And this thing not showing maturity, just like a childish thing. अगर आप परंपराओं को सिर्फ अंधों की तरह फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब आप में बहुत बचपना है, आप बड़े See, नहीं हुए। sometimes when I see that, I'm not criticizing. पास्टर कह रहे हैं, But Jesus is talking here. With this, all this religion is not mature. पास्टर कह रही मैं अपनी तरफ से नहीं, लेकिन जैसे यीशु मसीह ने बताया परंपराओं की, मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। See, you see, Tulsi plant. You put some clothes, this thing, the person doing. When you see they are just like a child, playing. Like when we were childhood time, we used to play. पास्टर कह रही कि अगर कोई इंसान तुलसी के पौधों कपड़े पहना रहा है तो आप क्या समझेंगे उसको देखकर कि जैसे बच्चे खिलौनों कपड़े पहनाते हैं, पागल जैसा दिखते हैं ना? Not look mature. तो आप उसको समझदार व्यक्ति नहीं कह सकते हैं। So all this tradition, religion is like a childish things. ये सारी जो धर्म और परंपराओं की चीजें हैं, ये सिर्फ एक बचपना है। So God said they are not spiritual परमेश्वर maturity. कह रहे हैं कि आप आत्मिक रूप से बड़े नहीं हो, इसका मतलब They are childish. वो बच्चे हैं। That is God is talking about. परमेश्वर यही कह रहे हैं Follow Jesus Christ. Only will save your life. कि सिर्फ यीशु के पीछे चलना ही And आपको religion, tradition lead you to hypocrite. लेकिन अगर आप परंपराओं का पालन कर रहे हैं तो उसमें कोई पाखंडी बना दिखा रहे हैं। They will make you make you righteous. Morning wake up early in the morning, cleaning house, cleaning and taking bath and cooking and giving food, but your heart is dirty. Then God is not accepting. अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, नहा धो के किचन में जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं और अपने को शुद्ध समझ रहे हैं, तो ये चीजें कभी आपको शुद्ध नहीं, क्योंकि आपका दिल ही गंदा है तो उसमें कोई फायदा नहीं। And you are doing puja nicely, अच्छे से पूजा कर रहे putting हैं, candle, all these आरती things, कर रहे हैं, showing to people that you are धूप जला रहे हैं और righteous. लोगों को दिखा रहे हैं, अरे वाह मैं तो बहुत I follow all the rule and मैं तो सारे regulation, परंपराओं का पालन कर रही हूँ, but your heart is far और away, दिल में तो सारी चुगलियां भरी हैं, and you are not तो blessed. कैसे आशीष मिलेंगे? That is why they are hypocrites. So इसलिए many वो लोग people. पाखंडी हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। That's why I know Mark 7:6 is talking about 7:6. Jesus replied, "You hypocrite." तो इसीलिए मरकुस के 7 के 6 और 7 में क्या लिखा है कि तुम पाखंडी हो। And religion tradition can lead you to false worship. ये सारे I'll परंपराओं को finish पालन on करने this से vision. Religion tradition will lead you into false worship. तो ये सारी जो आराधना है ये सब आपको सिर्फ एक गलत तरह की आराधना में ले जाती है। If you परंपरा follow religion and tradition, अगर आप धर्म और परंपराओं को पालन कर रहे हैं, if you not follow the gospel, अगर आप सुसमाचार का पालन नहीं कर रहे if you lead into the false worship. तो ये सब चीजें आपको झूठी आराधना में लेकर जाएंगे। See, Bible says, if we are not carefully and lead into the false worship, if you are not carefully, religion tradition can replace the true worship. तो अगर आप सिर्फ परंपराओं में ही फंसे हुए हैं तो परंपराएं कई जगह पर आपकी परमेश्वर की आराधना की जगह ले लेंगी। So worship is we need to worship truth and spirit. तो बाइबल में लिखा है कि अगर मैं आराधना करनी है तो आत्मा और सच्चाई से करनी है। But if you try, like for example, brother, what is the Simon is the worship leader. So he say, "Oh, I'm a leader. I need to lead." And if he do like that, and if you are not worshiping truth and spirit, that become a religion and tradition. तो अगर मान लीजिए ब्रदर साइमन यहाँ पे वर्शिप कर रहे हैं लेकिन वो एक आत्मा और सच्चाई मतलब उनका हृदय साफ नहीं है तो आराधना करने का कोई फायदा नहीं। That is why the Bible says the person who follow the rule, regulation, serves the rule, serves the regulation. Oh, I'm a leader, I'm a pastor, I need to do it. If I follow all these things is not in the truth, not in the spirit, then my work are in vain. तो अगर आप में से परमेश्वर की आत्मा के अनुसार आप नहीं चल रहे और आप सिर्फ ये समझ रहे कि मैं पास्टर हूँ, वर्शिप लीडर हूँ या लीडर हूँ और इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ तो आप परमेश्वर की तरफ से आशीषित नहीं हो पाएंगे। So God said, serve the Lord with the truth, with the heart. तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की सेवा पूरे दिल, पूरे मन और पूरी आत्मा से करनी है। And so all this following, this thing will make lead into the true worshipper. और जब कोई इंसान पूरे दिल, पूरे मन से करता है तभी वो एक सच्चा आराधक कहलाता है। So there is a God, hate those religions practice. तो इसीलिए परमेश्वर को सारी परंपराएं बहुत बुरी लगती है। People try to replace the gospel. लोग सारे सुसमाचार को हटा के सिर्फ पाखंडीपना करना चाहते हैं। They follow the rule and regulation and try to make them
follow nicely, but God is far away. लोगों को लगता है कि अगर हम परंपराओं का पालन अच्छे से कर रहे हैं तो हमें एक अच्छा मसीह हमें बना दिया जाता है, पर ऐसा नहीं होता है। So to save our life, तो अपने listen. जीवन को बचाने के लिए हमें क्या करना है? Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. इफिसियों का 2 का 8 से 9 देखेंगे। We will not read, just listen. आप सिर्फ सुने For तो by नहीं, God's grace, कि परमेश्वर के अनुग्रह से you will be saved. आप बचेंगे। No tradition, no कोई religion. परंपरा से हम नहीं बचेंगे, By the grace of God, सिर्फ अनुग्रह से बचेंगे। you are saved. आप बचे हैं। Not all these things you are not saved. ये सब चीजें पहनने से आप नहीं बचते हैं, And all the ritual that you do, you are not saved. या सिर्फ अपनी प्रार्थना करने से या टाइड ऑफरिंग देने से आप नहीं बचते हैं। But in the Ephesians chapter 2 8 and 9, लेकिन इफिसियों के 2 के 8 for और by 9 God's grace, कि परमेश्वर के अनुग्रह से you have been saved आप बचे हैं through faith. विश्वास से। This is not your own doing, ये आपके खुद की वजह से नहीं, but this is the gift of God. लेकिन परमेश्वर का एक तोहफा है आपके लिए। Amen. आमीन। And then also the Peter said to the people, repent and baptize, you will be saved. और पतरस ने भी यहाँ पे क्या कहा है कि पछतावा करो, पश्चाताप करो और बच जाओ। And only Jesus Christ can save your life. सिर्फ यीशु मसीह हमारे जीवन को बचा सकते हैं। That is in John chapter 1 John chapter 14 verse 6. पहला यूहन्ना 14 का 6 में लिखा है। And then also Mark 16:16. मरकुस 16 के 16 Whoever believe and baptize, they are saved. कि जो भी विश्वास करेंगे वो और बपतिस्मा लेंगे वो बच जाएंगे, They are not condemned. उन्हें नकारा नहीं जाएगा। And then also here the Bible said to save your life, all these traditions and religion will never save your life. तो ये सारी परंपराओं का पालन करने से आप कभी भी नहीं बचेंगे। And then also in the book of Acts, और प्रेरितों की किताब क्या there है? is no other name to get salvation उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी और नाम नहीं है जिससे हमें उद्धार मिल सकता है, in the heavens and the earth. स्वर्ग और धरती पे Only the name of सिर्फ Jesus यीशु Christ. मसीह का ही नाम, You got salvation. आपको उद्धार मिलता है, You got healing. आपको चंगाई You मिलती got है, deliverance. आपको छुटकारा मिलता So है। my brothers and तो मेरे sisters, भाई और बहन, this year, तो इस साल all these traditions and religion will not save ये you. सारी परंपराएं हमें नहीं बचाएंगी, And all these things will not save ये you. सब ताबीज और धागे कलावे हमें नहीं बचाएंगे। Only follow Jesus सिर्फ Christ. यीशु मसीह के पीछे चलना ही हमें बचाएगा। Believe in Jesus. विश्वास करें यीशु में, Walk in the Spirit of God. आत्मा में चले, Then you will see the power of तभी आप God. परमेश्वर के सामर्थ्य को देखेंगे। Even you do great and अगर mighty. आप बड़े काम भी करते हैं, God said, if God is in us, अगर प्रभु हम में है you will do supernatural तो आप power. बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। If God is in you, अगर प्रभु आप में है, and if God is in your family, परमेश्वर के परिवार में है, God and Satan cannot do it together. परमेश्वर शैतान एक ही जगह पे साथ में नहीं रह सकते। If in your life God is there, लेकिन अगर परमेश्वर आपके जीवन में है no Satan. तो शैतान नहीं है। If in your life, in your family, अगर आपके परिवार में और आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन में no matter what the people do to you, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास के लोग आपके लिए क्या बोलते हैं और क्या you are करते हैं, powerless. उनमें कोई शक्ति नहीं है। Even the book of Mark chapter 16, मरकुस 16 में लिखा हुआ the है, Bible says, बाइबल में लिखा है, those who believe in me, जो विश्वास करेंगे मुझ even में, the people giving you poison, अगर आप यीशु विश्वास करें कोई आपको जहर भी दे दे you will not die. तो मरेंगे फिर भी नहीं आप, Because God is more powerful than poison. क्योंकि परमेश्वर में जहर से ज्यादा शक्ति है, God is more powerful than this one. परमेश्वर में इससे ज्यादा बहुत शक्ति है। God is more powerful than all the rule and regulation you practice. जितने भी आप नियमों का पालन करते, परंपराओं का पालन करते, उससे ज्यादा शक्ति यीशु मसीह में है। God is more powerful than your sickness. यीशु मसीह में ज्यादा सामर्थ्य है आपकी बीमारियों से भी। God is more powerful than Kalazadu. काले जादू से ज्यादा सामर्थ्य यीशु में है। God can heal. यीशु मसीह आपको चंगाई दे सकते हैं। Nothing will not this thing will not put them head that oh, this is very powerful, this is very mighty. Apart from God, nothing is not powerful. परमेश्वर के अलावा कोई भी चीज में शक्ति नहीं है। Only the Bible says, only through Jesus Christ you will be saved. सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हम बचाए जाते हैं। Only through Jesus Christ you are delivered. सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही आपको छुटकारा मिलता है। Only through Jesus Christ you go to heaven. सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही आप स्वर्ग जाते हैं। Only through Jesus Christ your family are saved. सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही आपका परिवार बचता है। Amen. आमीन। So this year, तो इस साल believe in Jesus. विश्वास करें यीशु, Trust in Jesus. भरोसा रखिए यीशु Don't मसीह walk में। in two rasta. दो रस्तों में ना चले। Bible says God hates the serving the two masters. बाइबल बताती है कि दो मालिकों की सेवा करने वाले से परमेश्वर नफरत करता है। Follow tradition, या तो परंपरा को चुन लो, follow ritual, रीति रिवाज को चुन लो, follow Jesus. या यीशु को चुन लो। You will never walk in. आप सब कुछ साथ में चलते चलते नहीं कर सकते। Darkness and light cannot together. अंधेरा और रोशनी एक ही जगह पे एक साथ कभी नहीं होता है। If you want to walk in light, अगर आपको रोशनी में चलना है darkness need to तो go. अंधेरे को निकालना पड़ेगा। If you want to walk in darkness, अगर आपको अंधेरा ही पसंद है light will not तो come. लाइट बंद करनी पड़ेगी। So you must reject it. तो आपको एक चीज को तो नकारना ही God will पड़ेगा। not come. Oh, stop it! Don't do it. God will not do like that. परमेश्वर कभी आपको हाथ पकड़ के हिलाएंगे नहीं, अरे अरे रुक जाओ ये मत करो। God is giving us a way. परमेश्वर ने अपना वचन दे दिया
this is the way. ये वचन है, ये रास्ता है, इसमें विश्वास करना है Trust. और भरोसा रखना है, Then you will be saved. तभी आप बचेंगे। If you don't want to believe, अगर आपको नहीं विश्वास करना, God said no, but no ठीक है, problem. तुम्हारी मर्जी है, मत करो, But you will go to hell. पर नरक में जाओगे ना, The ending और अंत में is the hell. नरक ही है। That's why इसलिए today many people didn't believe Jesus. आज बहुत सारे लोग यीशु में विश्वास नहीं करते हैं, But God didn't give punishment. लेकिन परमेश्वर ने फिर भी पनिशमेंट क्यों नहीं देता है? God allowed them. परमेश्वर कहते हैं, कर लो, But the end they will go to लेकिन hell. अंत में नरक ही जाओगे तुम। Our life is very short. हमारा जीवन बहुत छोटा है, You may be living, nobody will not live 200. कोई भी 200 साल तक जीवन जीने नहीं वाला, 100 hardly. 100 120 के ऊपर तो कोई नहीं जाता, But in this time, लेकिन इस समय में live for God. प्रभु के लिए जिए। In hell, नरक में there is no age. कोई उम्र नहीं 1 है, year, 2 years, you'll be hell. ऐसा नहीं है कि नरक में आपको सिर्फ 1 2 4 साल या 15 साल ही बिताने पड़ेंगे, Forever हमेशा जाना, and ever. हमेशा You are born in hell. आप चलते रहेंगे। So now you are alive. तो अभी हम जिंदा हैं, Short period of time. थोड़े समय के लिए, Follow the way of तो God. सही रास्ता चुने, Believe in Jesus. विश्वास करें यीशु Trust में, in Jesus. भरोसा करें All यीशु में। this tradition, believe, you know. And then also, if you didn't eat this thing, will save your life. If I didn't do this thing, I will save my life. Nothing will not work without कोई भी Jesus. परंपरा, कोई भी सोच, कोई भी विश्वास आपको नहीं बचाएगा, सिर्फ यीशु मसीह ही आपको बचाएगा। और हम कभी-कभी बहुत supernatural, you know. कई बार हम बहुत अंधविश्वासों पर स्थित They हैं। want to know future. कई बार भविष्य देखना होता है तो They पंडित go के to पास the जाते हैं palm reader. कि हाथ देख दो हमारा, और विश्वास करते हैं, ओ ऐसे करेगा तो मेरे से ऐसा हो जाएगा, you know. All these things will not save ये us. सब चीजें हमें कभी नहीं बचाएंगी। I used to tell you, ना, I want to pass a class. पास्टर ने भी बताया था, पहले अपनी गवाही दी थी कि जब उन्हें 10th क्लास पास करनी थी, Somebody told me he had written everything. किसी ने बोला कि अरे हाथ पे जो लिखा होता है ना, सब लिखा होता है मेरे जीवन में। So संडे का दिन मेरा फ्रेंड ना मेरे को हाई करके मेरे फैमिली से और हम मंदिर गए थे. तो एक दिन संडे के दिन इनके दोस्त जो थे, इनको मंदिर में लेकर गए पंडित के पास। So पंडित से, oh you be pass class thing. पंडित ने बोला, अरे तुम 10th क्लास में बहुत अच्छे नंबर मैं तो लाओगे। विश्वास का, हाँ पास्टर ने बोला, हाँ हाँ पास होने वाली है मैं तो। क्लास का रिजल्ट आया. रिजल्ट आया तो नहीं पास हुआ। Without studying how I will pass. जब पढ़ाई नहीं तो पास कैसे होगा? So you say you will pass. No, I didn't study. पास्टर ने बोला, जब पंडित ने बोल दिया कि पास होगी तो पढ़ो ही क्यों, वैसे ही पास हो जाओगे। See, that is the thing. Only God can give you. सिर्फ परमेश्वर ही आपको दे सकता है। So all these things people believe. लेकिन लोग विश्वास करते हैं ये People भविष्य say, देखने nah, में। I was seeking this eye. कई लोग कहते हैं मेरी आँख फड़फड़ा रही है। Oh, ये eye seeking करेगा तो कोई इंसान मरेगा. अरे कोई तो मरने वाला, आँख फड़फड़ा रही है। Only God can save us. परमेश्वर ही मारता, परमेश्वर ही जिंदा करता है। Or you have a dream. या कई Oh, लोग इस dream कहते हैं, अरे आएगा तो मुझे बहुत बुरा सपना आया। तो मेरे घर में तूफान आना है वे- और मेरे घर में आशीष आने. All these things are the supernatural. ये सिर्फ अंधविश्वास ही है। Believe in Jesus. यीशु में विश्वास, What Jesus जो said. यीशु ने कहा, Because whatever you believe, क्योंकि जो भी आप विश्वास करेंगे, Satan will make you to. शैतान वो ही आपके जीवन में करेगा। If you believe what you believe, then it will work. अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि कुछ चीजें आपके जीवन में होंगी तो वो होंगी, Because Satan also makes sure that yes, I am. क्योंकि शैतान के अंदर भी शक्ति और अपनी शक्ति दिखाता है। That's what Jesus said. इसलिए यीशु ने कहा, Believe in me, विश्वास करो मुझ में you will be saved. तो तुम बच जाओगे। We all let us stand आइए together. हम साथ में खड़े हो जाएं। So today, तो all आज these traditions and religion will never save us. तो ये सारी परंपराएं हमें कभी नहीं बचाएंगी। Believe in Jesus Christ. विश्वास करिए